So today we are going to start a very important session of solvency ratios, as the question is expected from the topic solvency ratios also. Well, to understand the meaning of solvency ratios, you can see very well these ratios measure the long-term financial soundness. What is long-term financial soundness? Means to check whether the firm is able to pay its long-term debts comfortably or not. Whereas the liquidity ratios explain the firm's ability to check the short-term financial soundness. So solvency ratios में we are going to do the first ratio, that is debt equity ratio. तो debt equity ratio का formula इस ratio के नाम में ही है, that is debt and equity. So debt upon equity is the formula of debt equity ratio, and the ideal ratio is said to be 2:1. Right? Now we see the components. Debts में क्या क्या components हो सकते हैं? What all can come under debts and what all can come under equity? Debt refers to long-term borrowings and long-term provisions. Under long-term borrowings, what items can we include? The debentures, which is a long-term loan, the bonds, the bank loan, mortgage loan, and public deposits. So these are the main components of long-term borrowings, right? We have to be very, very cautious while checking the items. इसके बाद हम देखते हैं equity. Equity is the another name of equity is shareholder funds. Shareholder funds means you can say owners funds, where the owners have invested the money. Those are known as owners funds, shareholder funds. So shareholder funds means the equity share capital, that is owners capital, the preference share capital, the reserves and surplus amounts, that is you can say accumulated profits, P&L credit or P&L debit balance to be subtracted, right? So shareholder funds में हमें याद रखना है share capitals and reserves and surplus. Borrowings में हमें याद रखना है debentures, bonds, mortgage loan and public deposits. एक टर्म इसमें और दी हुई थी लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. वैसे तो इसके आइटम्स नहीं लिखे होंगे, अदरवाइज फॉर योर नॉलेज यू कैन से लाइक एम्प्लॉइज provident fund is a part of PF. Provident fund is a part of that. Employees gratuity fund is also a part of long-term provisions or any other retirement related fund. So gratuity funds, employees provident funds are the part of long-term provisions. Well, now there are certain shortcuts given. Debt means this you have already done in under when I have explained the meaning of current ratio. There you have done it already. कि total debts में से अगर current liabilities हटा दें तो debt बच जाता है. This is also long-term debts. And debt का एक formula ये भी होता है कि capital employed में से हम shareholder funds minus कर दें. तो आप ये देख सकते हो, ये जो shortcuts हमारे सामने आ रहे हैं, ये सब के सब कहाँ से बनाए हमने? थ्रू द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझनी है स्टूडेंट्स, वो ये समझनी है कि हमारे तीन कंपोनेंट्स तो लायबिलिटीज पर होते हैं. इक्विटी, दैट इज शेयर होल्डर फंड्स. सेकंड, लॉन्ग टर्म डेट्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन के लिए एक ही हेड होता है, दैट इज नॉन करंट लायबिलिटीज. और थर्ड आइटम होता है हमारा करंट लायबिलिटीज. इन तीन आइटम की हेल्प से हमारी लायबिलिटी साइड बन जाती है. और एसेट साइड में सिर्फ दो ही आइटम्स आते हैं, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स. वेयर अब आपको क्या याद रखना है एग्जामिनेशन में कि इक्विटी और नॉन करंट लायबिलिटीज का सम, द इक्विटी एंड नॉन करंट लायबिलिटीज का सम, यानी कि वन हेडिंग एंड 2 पॉइंट, इन दोनों का सम क्या कहलाता है? कैपिटल एम्प्लॉयड. दिस इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द बिजनेस. इससे हमारा फॉर्मूला बनेगा कैपिटल एम्प्लॉयड का. नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज को अगर हम ऐड कर दें तो वी विल गेट टोटल डेट्स. सो इजी टू अंडरस्टैंड. अब कोई बोले कि करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि सर टोटल डेट्स माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ करंट लायबिलिटीज. तो सिंपल, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स मेक्स टोटल एसेट्स. अब कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला हमारा अगर एसेट साइड की अप्रोच लेके चले तो क्या हो सकता है? नॉन करंट एसेट्स, ये जो हमारा फर्स्ट हेडिंग है जिसमें हमारे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स एंड बाकी सब एसेट्स आते हैं, प्लस वर्किंग कैपिटल. व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? द करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज वर्किंग कैपिटल. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्किंग कैपिटल. So with the help of this very important balance sheet, आप देखो शेयर होल्डर फंड्स किसे कहेंगे? शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस के सम को.
शेयर होल्डर फंड का ऑल्टरनेट फॉर्मूला क्या बनेगा? अगर हम एसेट साइड के टोटल में से टोटल डेट्स माइनस कर दें, टोटल डेट्स मींस दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला स्टूडेंट्स, प्लीज राइट इट ट्वाइस और थ्राइस. शेयर होल्डर फंड्स मींस टोटल एसेट माइनस टोटल डेट, टोटल एसेट माइनस टोटल डेट, टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट्स. देखिएगा ये फॉर्मूला कैसे हमारा एग्जिस्टेंस में आता है, टोटल एसेट माइनस टोटल डेट्स. प्लीज अंडरस्टैंड, टोटल एसेट्स हमारे ये रहे, द सम टोटल ऑफ द एसेट साइड इज टोटल एसेट्स, और टोटल एसेट में से टोटल डेट कम कर दें अगर हम, यानी कि ये दोनों आइटम्स, तो पूरी बैलेंस शीट के अंदर से अगर आप पूरी एसेट साइड के टोटल को इन दोनों में से माइनस कर दें, these two items if you subtract from total assets, so only one item is left in the balance sheet now, that is equity. तो equity means shareholder funds. तो कैसे फॉर्मूला बना हमारा कि total of the assets minus total of the debts, that creates shareholder funds, right? The total of debts are subtracted from the total of the assets gives us equity, that is shareholder funds. तो ये सारे फॉर्मूले याद रखते हुए please come to the assignment part. The first question of the topic, the first question of the chapter, that is the total assets of the company are 3,50,000. Total debts consist of bank loan 1 lakh. Total debts में हमारा क्या क्या है? Bank loan है 1 lakh का, which is a part of total debts, part of long term debts, and current liabilities are also given 50,000. That equity ratio will be. तो एग्जामिनेशन में जब ये क्वेश्चन आएगा आपके सामने, तो what you will do, you will simply write debt equity ratio. Debt upon equity is the formula. Now students, please check out what are the debts items in the question. Debt means bank loan, which we have already done. So bank loan is how much? 1 lakh rupees. And equity means what? Shareholder funds. And there is no shareholder fund given in the question. If there is no shareholder fund given in the question, which formula I just ask you to write 3 times? Total assets minus the total debts. This is the formula which is to be used very frequently while tackling the typical questions of this chapter. So total assets आप देख सकते हैं 3,50,000 है, it's given clearly, and total debts किसे कहेंगे? The bank loan and the current liabilities, both the debts makes a total debt. So 1 lakh plus 50,000, that is 1,50,000 rupees. So how much is the total debts? The shareholder funds 2 lakh rupees. So this is how we are going to get the answer of shareholder funds, or you can say equity. टोटल एसेट्स हमें दे रखे थे 1,50,000 के, हमारे टोटल डेट्स हो गए, तो टोटल एसेट्स में से अगर टोटल डेट्स माइनस कर दें तो वी आर लेफ्ट विद शेयर होल्डर फंड्स, और यू कैन से इक्विटी. तो डेट दे रखा है 1 लाख बैंक लोन, और दिस इज गिवन 2 lakhs. व्हाट इज द आंसर? 1:2. So option C you will mark is the correct answer. And in the board examination paper, if A, B, C, D, in every video I'm explaining, if C is the correct option, then you have to darken C circle, okay? And in the box provided, this is compulsory to write C. If you left writing C, then whether the answer is correct, even then you will get a 0. So this box writing is compulsory. First question is clear. Now we come to the second question. चिल्ड्रन, आई हैव ट्राइड कि सारे क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत चैलेंज जरूर हो, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इजी आने वाला नहीं है. सो डेट इक्विटी रेशियो वी हैव टू अगेन कैलकुलेट. फिक्स्ड एसेट्स आर गिवन, accumulated depreciation is given. Always remember fixed asset में से depreciation माइनस करना जरूरी है to get net fixed assets, क्योंकि कोई भी रेशियो नेट फिगर से ही निकाली जाती है. तो आप देख सकते हो 840 में से अगर 140 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नेट फिक्स्ड एसेट्स हमारे कितने बचेंगे? 840 minus 140, the left amount of net fixed assets will be 7 lakh rupees. Simple to understand. Non-current investments are 14,000. Long-term loans debit balance, these are loans given, और loans given जो होते हैं वो हमारे assets होते हैं, fixed assets. The loans given, these are long-term loans debit balance. डेबिट रेफर्स टू एडवांस लोन, विच व्हेन वी गिव, अगर हम किसी को लोन देंगे तो वो हमारी लायबिलिटी नहीं हो सकता, वो हमारी एसेट होगा, क्योंकि हमारा बिजनेस ही फाइनेंस का. तो वी हैव बीन गिवन दीज एसेट्स, सारे के सारे आइटम्स ही एसेट्स के. और क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल गिवन है 10% डिबेंचर्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस गिवन. अब आपको निकालना कौन सा रेशियो है? डेट इक्विटी रेशियो. डेट इक्विटी रेशियो के लिए पहले हमें क्या चाहिए? डेट. और डेट दो एलिमेंट से बना है. द डेट दैट इज डिबेंचर्स फॉर 20,000, और सेकंड एलिमेंट है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, जो हमने आपको बताया था.
Employees Provident Fund, Employees Gratuity Fund, Retirement Funds, all are long term provisions. तो वो भी नॉन करंट लाइबिलिटी का ही पार्ट होता है. तो 420 plus 140 is how much बेटा? It is going to be 5,60,000. डेट हमारा निकल कर आ गया. अब डेट के बाद हमें नेक्स्ट आइटम कौन सा चाहिए? इक्विटी. इक्विटी के लिए आप एक बार दोबारा से देखिएगा ऊपर व्हाट फॉर्मूला आई हैड गिवन. एक फॉर्मूला हमारा था टोटल एसेट माइनस टोटल डेट्स. नेक्स्ट फॉर्मूला इज शेयर होल्डर फंड्स, सॉरी कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज. तो अगर हम शेयर होल्डर फंड्स को इफ आई टेक इट आउट, यानी कि इक्विटी को अगर हम बाहर कर दें इस फॉर्मूले से, तो क्या बचेगा हमारे पास? कैपिटल एम्प्लॉयड में से हम क्या माइनस कर दें? नॉन करंट लायबिलिटीज. तो वी विल बी लेफ्ट विद शेयर होल्डर फंड्स, राइट. तो डिपेंड्स कि कौन सा फॉर्मूला कहां पर इजीली एप्लीकेबल है हमारा. तो इफ यू लुक इनटू द क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, यू विल फाइंड कि कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा निकल सकता है बड़े प्यार से इसके अंदर. बताइए कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे? देयर इज अ इजी वे आउट टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड. द फॉर्मूला सेज फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल. फिक्स्ड एसेट्स हमें दे रखे हैं 7 लाख रुपीस के, तो ये हो गए इन दोनों का नेट डिफरेंस. 14,000 नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ये भी हमारे एसेट्स. तो नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स आ जाएंगे एक हमारे. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट था 14,000 एंड लॉन्ग टर्म लोन्स आर हाउ मच? 56,000, राइट. प्लस वर्किंग कैपिटल दैट इज गिवन 70,000. तो आप देखोगे तो हमारा अमाउंट आ रहा है 8,40,000. दिस इज द फॉर्मूला नॉट ऑफ इक्विटी बट यू कैन सी कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि अल्टीमेटली हमें कैपिटल एम्प्लॉयड वाले से ही आंसर निकलेगा हमारा. तो कैपिटल एम्प्लॉयड पर हम आ गए हैं. कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने? ऑल फिक्स्ड एसेट्स प्लस व्हाट? ऑल द नॉन करंट एसेट्स यू कैन से और फिक्स्ड एसेट्स एंड द वर्किंग कैपिटल. कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया. अब हमें ओनर्स फंड्स निकालना है स्टूडेंट्स. तो इक्विटी यानी कि कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड में से व्हाट शैल आई सब्ट्रैक्ट? आई शैल सब्ट्रैक्ट द नॉन करंट लायबिलिटीज. तो ओनर्स फंड बच जाएगा हमारा, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड इज अ यू कैन से सम ऑफ टू थिंग्स, द डेट प्लस इक्विटी. तो अब अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड में से डेट एलिमेंट हटा दें, दोनों का डेट का सम कितना आ रहा है? यू कैन सी 5,60,000. व्हाट इज द अमाउंट लेफ्ट? 2,80,000. तो अब आप देखो हमारे पास डेट इक्विटी रेशो हमें निकालना है. फाइनली वी हैव टू चेक व्हाट द फाइनल आंसर ऑफ डेट इक्विटी. तो आप देखोगे डेट हमारा तो 560 आ चुका था ऊपर, व्हिच वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड इन दोनों का सम. और इक्विटी हमने किसकी हेल्प से निकाला? कैपिटल एम्प्लॉयड में से हमने क्या माइनस कर दिया? डेट एलिमेंट, लॉन्ग टर्म डेट माइनस कर दी. तो क्या बच गया हमारे पास? इक्विटी मतलब ओनर्स फंड्स. तो 840 minus 560 is 280. So 2,80,000 is a denominator and 560 is the numerator. Final answer will be 2:1 because 28 twos are 56. So therefore the final answer will go B. So it is all game of formulas. The more you practice the formula, जितना practice करेंगे formulas को उतना जल्दी आपको learn हो जाएगा. Total debts, next question देखते हैं. Total debts are 60 lakhs. Shareholder funds are 10 lakhs. Total debts भी given है. Shareholder funds इस बार दे दिया निकाल कर हमको. Reserves and surplus is given 2,50,000. तो reserve and surplus का कोई significance नहीं रह जाता, क्योंकि shareholder fund का ही part होता है reserve and surplus. This is a part of owners funds only. तो जब हमें total दे रखा है तो इसका item का there is no as such any significance. Current assets are 25 lakhs. Working capital is 5 lakhs. What will be the debt equity ratio? So to calculate debt equity ratio, first of all, the most important thing we need is debt. And what is the formula of debt? Debt का formula होता है total debts हमारे जितने हमें दे रखे हैं. First word हमें total debt दे रखा है, उसमें से अगर हम क्या माइनस कर दें? current liabilities. क्योंकि total debt is what? Current liabilities and non current liabilities का सम. और ये non current liability होता है which is the long term item. So total debts are given how much? 60 lakhs. बट क्वेश्चन में आप बोलेंगे कि सर देयर इज नो करंट लायबिलिटी मेंशन्ड एज सच एनीवेयर. तो करंट लायबिलिटी आप वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले से भी तो निकाल सकते हैं. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्किंग कैपिटल? सीए माइनस सीएल. एंड वर्किंग कैपिटल इज गिवन 5 lakhs. करंट एसेट्स आर गिवन हाउ मच? 25 lakhs minus CL. तो CL will be 25 minus 5, that will be 20 लाख रुपीस करंट लायबिलिटीज आ जाएगा हमारे पास.
सो स्टूडेंट्स, पहला कंपोनेंट डेट इक्विटी रेशियो का, डेट हमारे पास आ चुका है, दैट इज 40 लाख। और दूसरा कंपोनेंट क्या होता है? इक्विटी, दैट इज शेयर होल्डर फंड, व्हिच इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। तो अब हमें निकालने की जरूरत नहीं है, अब हमें सिर्फ आंसर पे पहुंचना है जल्दी से। डेट्स आर 40 लाख, शेयर होल्डर फंड्स आर गिवन 10 लाख। आप कहेंगे कि सर व्हाई यू हैव नॉट कंसीडर्ड रिजर्व इन सरप्लस, क्योंकि शेयर होल्डर फंड का ही पार्ट होता है रिजर्व इन सरप्लस। तो अगर उसको कोई पार्ट दे भी रखा है तो उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है क्वेश्चन। So 40 upon 10, you can comfortably see the final answer should be 4:1, right? So 4:1 will be the final answer of the question. You will mark fourth question as the right option. Next question देखिएगा. The non-current assets of the company are 26 lakhs. Current assets are 9 lakh. Non-current assets and current assets makes what assets? Total assets. Shareholder funds are given. हमसे इस बार रेशो नहीं पूछ रहा है स्टूडेंट. He is asking for what? Total debts. तो बैलेंस शीट में अगर आप एक बार देखो ध्यान से, तो टोटल डेट्स का मतलब क्या होता है? टोटल डेट्स रेफर्स टू टू थिंग्स, कि सर नॉन करंट लायबिलिटीज में आप करंट लायबिलिटीज ऐड कर दो तो इट गिव्स अस टोटल डेट्स। दिस इज हाउ वी गेट द टोटल डेट्स का आंसर। तो अब यू कैन सी वेरी कंफर्टेबली कि नॉन करंट एसेट्स, टोटल एसेट्स आर गिवन एंड शेयर होल्डर फंड्स आर गिवन। तो अगर आप एक बार बैलेंस शीट में देखो तो बड़े ही आराम से समझ जाओगे कि ये जो टोटल है हमारा, टोटल ऑफ द एसेट साइड हमें मिल गया, नॉन करंट और करंट का टोटल मिल गया। और नॉन करंट एंड करंट के टोटल में से इफ आई सब्ट्रैक्ट व्हाट, द इक्विटी, द शेयर होल्डर फंड्स, ओके, व्हाट आई विल बी लेफ्ट विद, I will be left with non-current liabilities and current liabilities, and the sum of these two items is what? Total debts only. So we are getting, what is the formula now we have calculated? अब आप खुद फॉर्मूला बनाओगे, अगर आपके माइंड में बैलेंस शीट चल रही है तो आप फॉर्मूला खुद बना सकते हो कि सर अगर हम टोटल डेट्स में से क्या माइनस कर दें, इक्विटी माइनस कर दें, यानी शेयर होल्डर फंड, तो जो बचेगा दैट इज टोटल डेट्स। सो स्टूडेंट विद फुल कॉन्फिडेंस यू कैन सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ? टोटल डेट्स निकालने के लिए सबसे पहले टोटल एसेट्स देखने पड़ेंगे। 26 + 9 इज 35 लाख से टोटल एसेट्स हो गए हमारे। सो टोटल एसेट्स आर 35 लाख, और 35 लाख में से अगर हम शेयर होल्डर फंड्स कितना दे रखा है, 21 लाख, तो वी कैन इजीली गेट टोटल डेट्स का आंसर विद फुल कॉन्फिडेंस, विदाउट एनी सेकंड थॉट। अदरवाइज एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा तो बच्चों को कंफ्यूज कर सकता है। तो टोटल एसेट्स में से शेयर होल्डर फंड माइनस करा, द अमाउंट लेफ्ट इज 14 लाख रुपीज। तो विद 100% confidence you can mark 14 lakh is the correct answer rather than any other amount, right? So balance sheet will help you a lot in understanding the formulas and concepts. वहीं से फॉर्मूले बने हैं सारे, इसको लर्न भी करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो देखिए फॉर्मूला क्या बनकर आ रहा है, टोटल एसेट्स माइनस शेयर होल्डर फंड इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल डेट्स। अदरवाइज तो हाउ मेनी फॉर्मूलाज यू विल लर्न, द बेस्ट वे इज टू कैलकुलेट थ्रू बैलेंस शीट। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर वही पूछ रहा है, कैपिटल एम्प्लॉयड और शेयर होल्डर फंड्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। कैपिटल एम्प्लॉयड इज व्हाट? यू विल से डेट प्लस इक्विटी इज कैपिटल एम्प्लॉयड, द सिंपल थिंग, ओके। और बोलता है इसमें से आप शेयर होल्डर फंड्स माइनस कर दो कैपिटल एम्प्लॉयड से। व्हाट इज इक्विटी? इक्विटी इज शेयर होल्डर फंड्स ओनली। तो अगर इन दोनों में से अगर हम ये वाला आइटम रिमूव कर देते हैं तो व्हाट इज लेफ्ट? ओनली डेट इज लेफ्ट। तो इसका मतलब साफ है कि कैपिटल एम्प्लॉयड और शेयर होल्डर फंड का डिफरेंस क्या होगा? डेट। तो द करेक्ट answer is B, debts. So simple to understand, but you have to practice these questions a lot. That is how you can gain the confidence. But question आता है examination में assertion reason का, accounts का, वो थोड़ा सा challenge करता है। Some students have requested me to make a separate video, but अगर आप हर रेशो का वीडियो देखोगे तो you can gain confidence, okay? If debt equity ratio is 2:1, sale of machine 25,000, costing 20,000 ऑन क्रेडिट विल रिड्यूस द रेशियो। बोलता है कि अगर हम मशीन सेल करेंगे 20,000 की मशीन 25,000 में, यानी कि 5,000 के गेन हो गया हमको, दिस इज द गेन ऑल्सो, क्योंकि 25,000 में आपने सेल करा है, इस गेन से हमारी रेशियो कम हो जाएगी। लेट्स सी द रीजन। सेल ऑफ मशीन विल नॉट अफेक्ट द डेट। मशीन की सेल होने से डेट पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बिकॉज डेट का पार्ट मशीन हो ही नहीं सकता कभी भी। शेयर होल्डर फंड्स एंड शेयर होल्डर फंड्स ऑल्सो ऑब्वियसली, बट गेन ऑन सेल ऑफ मशीन will increase the shareholder fund. ओनर के फंड्स बढ़ जाएंगे, जो रिजर्व्स एंड सरप्लस का प्रॉफिट होता है इसमें हमारा, वो बढ़ जाएगा। एंड डेट इक्विटी रेशियो विल रिड्यूस। व्हाई? आप देखो 2:1 रेशियो है। सपोज 2 लाख के डेट्स थे हमारे, डेट इक्विटी रेशियो का मतलब हो गया डेट न्यूमरेटर है, और 1 लाख हमारा हो गया इक्विटी, मतलब दिस इज न्यूमरेटर।
द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, 2 लाख अपॉन 1 लाख। अब आप देखो स्टूडेंट्स कि अगर आपको गेन हो रहा है तो गेन होने से अनडाउटेडली हमारा ये बढ़ रहा है इक्विटी, और जब डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है तो रेशियो तो ऑटोमेटिकली डाउन होने लगा हमारा। 1,05,000 को अगर आप 2 लाख को अगर 1,05,000 से डिवाइड करेंगे तो वो 1 से नीचे हो जाएगा, रेशियो 2 से नीचे हो जाएगा, और नॉट, इट इज गोइंग टू डिक्रीज फ्रॉम 2, बिकॉज 2 लाख को 1 लाख से डिवाइड करें तो 2:1 आंसर आ रहा है, और 2 लाख को 1,05,000 से करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.9 समथिंग। तो देयरफॉर द रेशियो विल रिड्यूस। तो दोनों बातें इन्होंने सही कही हैं, यहां पर भी कहता है रिड्यूस करेगा और यहां पर भी कहता है रिड्यूस करेगा, इन बोथ द सिचुएशंस, राइट? So undoubtedly we will say option A is correct. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Yes, the ratio will reduce. क्योंकि स्टेटमेंट में कहा गया रेशियो में कि रेशियो रिड्यूस होगी, और रीजन से हमने समझा कि yes, the ratio will reduce positively, therefore it will be A answer. Next question, 8th. If debt equity ratio is 2:1, issue of bonus shares. I think I left one question. Yeah, 7th question I left. If debt equity ratio is 2:1, conversion of debentures, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया स्टूडेंट, यहाँ बड़ा ही ध्यान देने की बात है, कई सारे लोग इसमें कंफ्यूज्ड हैं। कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू शेयर्स विल नॉट चेंज द रेशियो, बोलता है कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स विल नॉट अफेक्ट डेट बिकॉज डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड विद इन 12 मंथ्स आर करंट लायबिलिटी। प्लीज रिमेंबर स्टूडेंट्स, जो भी डिबेंचर रीपे होता है, कोई भी लॉन्ग टर्म लोन अगर रीपे होता है तो वो करंट लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि उसका लास्ट ईयर आ गया अगर रीपेमेंट का तो फिर इट्स नो मोर अ लॉन्ग टर्म लोन, फिर वो क्या बन जाता है, हमारी करंट लायबिलिटी। ओके, तो दिस रीजन इज करेक्ट। बट शेयर होल्डर फंड्स विल इंक्रीज ड्यू टू न्यू इशू ऑफ शेयर्स। देखिएगा डिबेंचर्स हमारे कन्वर्ट होके क्या बन रहे हैं, शेयर्स। तो अगर डिबेंचर्स शेयर्स बन रहे हैं तो क्या बढ़ जाएगा हमारा, शेयर होल्डर फंड्स, जिसमें शेयर कैपिटल आती है, और शेयर कैपिटल यानी कि डिनोमिनेटर, शेयर कैपिटल सुन है डिनोमिनेटर शेयर होल्डर फंड्स, तो रेशो हमारी क्या हो जाएगी, रिड्यूस। इट मींस द रीजन इज करेक्ट। ओके, whereas assertion कहता है कि देयर इज नो चेंज पॉसिबल, लेकिन रीजन कहता है कि नो देयर इज अ चेंज पॉसिबल, रेशो बदलेगी हमारी और रिड्यूस होगी। तो यू विल से द रीजन इज ट्रू एंड द असर्शन इज फॉल्स। तो द आंसर इज ए। तो स्टूडेंट्स प्लीज याद रखिएगा ये वाली बात कि वैसे तो हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के आइटम में क्या क्या लेते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हम डिबेंचर्स लेते हैं मेजर आइटम, और बैंक लोन्स वगैरह लेते हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स लेते हैं, ये सारे आइटम्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। बट डू रिमेंबर इन द ईयर ऑफ रीपेमेंट, रीपेमेंट को अकाउंट्स में कहते हैं रिडेम्पशन, इन द ईयर ऑफ रीपेमेंट दे ऑल आर ट्रीटेड एज व्हाट, करंट लायबिलिटीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, प्लीज डोंट फॉरगेट इट। अगर डिबेंचर्स का भी रिडेम्पशन होगा तो भी लॉन्ग टर्म डेट्स अफेक्ट नहीं होंगे, कोई लोन रीपे होगा तो भी डेट इफेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि डेट बिकम्स करंट लायबिलिटीज इन द लास्ट ईयर ऑफ रिडेम्पशन। सिर्फ किस पर इफेक्ट पड़ेगा, ओनली ऑन शेयर, बिकॉज डिबेंचर शेयर बन गए हमारे, तो दैट इज व्हाई डिबेंचर इज अ नॉन डिबेंचर इज अ करंट लायबिलिटी, तो नॉट गोइंग टू अफेक्ट द रेशियो, बट शेयर होल्डर फंड हमारे इंक्रीज हो जाएंगे तो रेशियो विल रिड्यूस। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन यू कैन सी, if debt equity ratio is 2:1, issue of bonus shares. What are bonus shares? Bonus shares are those shares which are issued by the company without taking any money from the shareholders. आपके पास सपोज करिएगा 100 शेयर्स हैं, तो कंपनी ने 100 के प्रोपोर्शन में सपोज करिए आपको 2 शेयर्स एक्स्ट्रा दे दिए, तो अब आपके पास शेयर्स हो गए 102 शेयर्स। तो ये जो 2 शेयर आपके अकाउंट में आए हैं, ये कंपनी पैसा नहीं लेती इसका, अपने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूज करती है, किसी और रिजर्व को यूज करती है, और उस रिजर्व से आपके शेयर को बढ़ा देती है। दिस इज कॉल्ड बोनस शेयर्स, राइट? अब बोनस शेयर जब इशू होंगे और डेट इक्विटी रेशियो आपकी 2:1 है, डेट सपोज करिए 2 लाख है और इक्विटी आपकी 1 लाख है, द शेयर होल्डर फंड। तो शेयर आपके इशू हुए सपोज करिए 10,000 रुपीज, तो बोनस शेयर्स हो कैसे भी हो, शेयर्स इशू होने से शेयर होल्डर फंड तो बढ़ जाएगा, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी तो शेयर होल्डर फंड का ही पार्ट है, रिजर्व एंड सरप्लस, तो एसपीआर भी 10,000 से कम हो जाएगा। तो अगर एसपीआर 10,000 से कम हो रहा है और शेयर्स बढ़ रहे हैं, तो प्लस भी 10,000 माइनस भी 10,000, तो दिस एरिया रिमेन्ड अनअफेक्टेड, देयरफॉर देयर इज नो चेंज पॉसिबल। तो अब वो क्या बोलता है आपसे
द रेशियो विल रिड्यूस। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब रेशियो पर इफेक्ट ही एक पड़ रहा है, दैट इज नो चेंज। लेकिन रीजन में वो क्या बोलता है आपसे, इशू ऑफ बोनस शेयर्स डज नॉट अफेक्ट द डेट एंड शेयर होल्डर फंड्स। व्हाई? बिकॉज द बोनस शेयर्स आर इशूड बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व, राइट, मींस बाय यूजिंग द रिजर्व। ये जो हमारा एसपीआर है, इसको यूज करके हमने शेयर बनाए हैं। तो एक रिजर्व कम हो गया, शेयर बढ़ गए हमारे, तो शेयर होल्डर फंड रिमेन्ड अनअफेक्टेड, विच आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन शेयर होल्डर फंड। बोल रहा है वो पहले से ही शेयर होल्डर फंड में क्या रिजर्व्स। As a result, debt equity ratio will not change. So not change means the reason is correct and the assertion is false. D is the correct answer. Every question has to be done with logics. अब 9th क्वेश्चन देखिएगा, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। कॉलम 1 में देखिएगा we have been given certain heads and कॉलम 2 में देखिएगा certain items are given of these heads related items. नंबर 1 में देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग आप देख सकते हो कि पब्लिक डिपॉजिट इज अ लॉन्ग टर्म बोरोइंग। जब हम लोन लेते हैं पब्लिक से, डिपॉजिट लेते हैं हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, दैट इज कॉल्ड पब्लिक डिपॉजिट, और नॉर्मली ये लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं, राइट। शेयर होल्डर फंड्स, दैट इज ओनर्स फंड्स। तो शेयर होल्डर फंड का तो पार्ट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस। दिस इज प्रॉफिट्स। क्रेडिट बैलेंस ऑलवेज मींस प्रॉफिट एंड डेबिट बैलेंस इज ऑलवेज लॉस। बट याद रखिएगा लॉस और प्रॉफिट दोनों ही किसका पार्ट है, शेयर होल्डर फंड्स। और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आज हमने आपको स्टार्टिंग में कराया, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड्स, एम्प्लॉइज ग्रेच्युटी फंड्स आर द पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो फर्स्ट का आंसर है थर्ड, तो यानी कि थर्ड ये वाला बन रहा है। सेकंड का आंसर है थर्ड, सॉरी फर्स्ट का आंसर है थर्ड, सेकंड का आंसर है आपका साहब, फर्स्ट का तो आंसर है सेकंड, तो दिस इज द वन, एंड सेकंड का आंसर है थर्ड, तो सेकंड का आंसर थर्ड हो गया, और थर्ड का आंसर है फर्स्ट, दैट इज दिस। सो अनडाउटेडली द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन यू कैन सी, पूरा डेट इक्विटी रेशियो का टोटल कंसेप्ट स्टूडेंट्स आप लोग समझने जा रहे हो। इतना करने के बाद आई एम कॉन्फिडेंट कि यू कैन हैंडल एनी क्वेश्चन कंफर्टेबली, यू कैन टैकल एनी टिपिकल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डेट इक्विटी रेशियो इज 2:1 डैश विल इंक्रीज द रेशियो। किसके होने से रेशियो ये इंक्रीज हो जाएगी। देखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें 4 क्वेश्चन मैं आपको करके समझा दूंगा, इन 4 पॉइंट से आपके 4 क्वेश्चन सॉल्व होंगे एक साथ। क्योंकि अगर 2 लाख का डेट है और 1 लाख का आपका शेयर होल्डर फंड यानी कि इक्विटी है, बिकॉज रेशियो इज 2:1, इसी रेशियो में हमने मान लिया। डिबेंचर्स रिडीम होते हैं स्टूडेंट्स, डिबेंचर के रिडीम होने से क्या होगा, इस पर नो इफेक्ट। क्यों? क्योंकि रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर मींस डिबेंचर तो सर रिडेम्पशन वाले ईयर में क्या बन जाता है, हमारी करंट लायबिलिटी। तो दैट इज व्हाई डेट पर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, राइट। अदरवाइज डिबेंचर देखते ही बच्चा सोचता है कि इसको कम कर दो यहाँ से, बट कम नहीं करना, नेवर। या रीपेमेंट ऑफ लोन होगा तो भी नहीं करना कम आप। अच्छा, डिबेंचर रिडीम होंगे तो और किस फॉर्मेट में रिडीम होंगे, बाय पेमेंट ऑफ कैश। तो डिबेंचर्स और कैश हमारे इसमें इन्वॉल्व है स्टूडेंट्स, तो देयर विल बी कैश भी इस रेशो में कहीं नहीं आता, क्योंकि तो आंसर क्या आएगा इसका, नो चेंज। इस केस में कोई चेंज रेशो में नहीं आएगा, हालांकि पूछा नहीं है लेकिन आपको समझना जरूरी है, क्योंकि ये सिचुएशन किसी भी जगह आ सकती है आपके लिए। इशू ऑफ शेयर से क्या होगा, क्या रेशियो इंक्रीज हो सकता है, शेयर इशू होने से नीचे वाला आइटम बढ़ जाएगा आपका। अगर मान लीजिए ये 1 लाख और बढ़ जाता है, शेयर इशू होने से शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी, शेयर होल्डर फंड बढ़ जाएंगे, इक्विटी बढ़ जाएगा, तो 2 लाख अपॉन 2 लाख हो जाएगा, तो रेशो कहाँ आ जाएगा, 1:1, और रेशो है 2:1, तो इससे रेशो क्या होगी हमारी, डिक्रीज। तो इंक्रीज तो इससे भी नहीं हो रही जो क्वेश्चन में पूछा गया है। इशू ऑफ डिबेंचर से क्या होगा, देखते हैं भाई। जब न्यू डिबेंचर्स आप इशू कर रहे हैं तो ऑब्वियसली योर व्हाट इज इंक्रीजिंग, डेट्स आर इंक्रीजिंग नाउ, नए डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं, और डिबेंचर इज अ लॉन्ग टर्म लोन। ओनली रीपेमेंट के टाइम पे करंट लायबिलिटी है, लेकिन इशू के टाइम पर जब हम फ्रेश डिबेंचर्स इशू करते हैं तो लॉन्ग टर्म लोन ही होता है। तो दिस इज 3 लाख अपॉन 1 लाख, और डिबेंचर्स नीचे इफेक्ट करेंगे नहीं क्योंकि वो शेयर होल्डर फंड का पार्ट हो नहीं सकते। तो द आंसर इज कमिंग 3:1, और 2:1 से 3:1 हो गया, कंफर्म। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट भी समझ लीजिए, इससे नो चेंज आएगा। क्यों नो चेंज आएगा, बिकॉज सर इसके होने में 2 ही आइटम इन्वॉल्व है, एक गुड्स परचेज यानी कि स्टॉक, स्टॉक इस रेशो में कहीं आ नहीं सकता है, स्टॉक इज अ करंट एसेट व्हिच नेवर कम्स इन दिस रेशियो। और क्रेडिट पे खरीदेंगे तो क्या बढ़ जाएंगे बिजनेस के क्रेडिटर्स, एंड क्रेडिटर्स आर व्हाट, करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज तो कौन सी रेशो में आते हैं, करंट रेशो में आते हैं, इस रेशो में तो आते नहीं है, तो द रेशो विल रिमेन अनचेंज्ड। तो एक क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चंस का फायदा हो गया,
you have learned all the concepts. Last question of the assignment, students. When the sale of fixed assets, देखिएगा, sale of fixed assets, book value 40,000 है, done at a loss of 10,000. हमने fixed asset जो 40,000 का था 10,000 के लॉस में बेचा है, और डेट इक्विटी रेशियो हमारी इस टाइम 2:1 है. सपोज डेट्स आर 2 lakhs एंड इक्विटी इज 1 lakh. अब लॉस पे अगर आप सेल कर रहे हैं, देखिए मशीन के सेल होने से मशीन तो इस रेशो में कहीं नहीं आती. मशीन विल नॉट अफेक्ट डेट और इक्विटी. मशीन तो कभी भी, या कोई भी फिक्स एसेट जो भी हमारा सेल हो रहा है, उससे ना तो डेट इफेक्ट होगा और ना ही इक्विटी. पहली बात तो ये हो गई. और हमारे को कैश आ रहा है, 40,000 की चीज 10,000 की लॉस पे सेल कर रहे हो, तो बच्चा बोलेगा सर कैश तो आ रहा है. कैश भी will not affect debt or equity because it is a current asset. अब बच्चा बोलेगा कि सर इसमें एक तीसरी चीज भी है, which is what? Loss. कितने रुपीस का लॉस हुआ है हमको सेल करने में? 10,000 का लॉस हुआ है. तो this 10,000 रुपीज लॉस will decrease the shareholder funds. ओनर्स का फंड्स कम हो जाता है. इक्विटी डिक्रीजेस, इक्विटी हमारी कम हो जाएगी. तो अब आप सोचिएगा 1 लाख से अगर ये 50,000, या आई मीन वी हैव रिटर्न लॉस ऑफ 10,000, अगर ये 10,000 का लॉस हम यहाँ लिख देते हैं, तो हमारी इक्विटी कम हो गई, ओनर्स फंड्स कम हो गए. तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स के रेशो पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है. पहले रेशो थी 2:1, अब 90,000 पर आ गया है. दिस इज 90,000. तो अगर आप 2 lakhs को, इफ सपोज यू डिवाइड 2 lakhs by 90,000 स्टूडेंट्स, तो यू विल फाइंड कि आपका आंसर कितना आएगा. अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे 2.22 रेशो, और रेशो है हमारी 2:1. रेशो पहुंच गई हमारी 2.22:1, तो आंसर कहेंगे इंक्रीज. जबकि बच्चा ये सोचता है कि लॉस वाला क्वेश्चन है, सर लॉस में तो रेशो इंक्रीज ही नहीं हो सकता. लेकिन आप ये देखिएगा कि डिनोमिनेटर डिक्रीज, और डिनोमिनेटर का डिक्रीज होना, देखिए रेशो कब डिक्रीज होती है? इंक्रीज होती है. डिनोमिनेटर जब भी कभी डिक्रीज होगा आपका, तो रेशो हमेशा क्या होगी? इंक्रीज. या फिर आपका क्या इंक्रीज हो जाए? न्यूमरेटर. न्यूमरेटर जब भी, यानी कि अपर वैल्यू जब भी आपकी बढ़ेगी, तो भी रेशो क्या होगी? इंक्रीज. एंड वाइस वर्सा. राइट? आई होप यू लाइक द सेशन. सो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट. प्लीज सॉल्व दिस असाइनमेंट, अंडरस्टैंड इट, एंड देन solve it very, very confidently. Thank you all of you. Thank you students. All the best.